Hello, dear students. I welcome all of you to my YouTube channel Mathematics Prime. Today, we are going to discuss arithmetic progression, which is yesterday's lecture. Now, yesterday you learnt about what is AP. You learnt a sequence in which each succeeding term can be obtained by adding a constant number to the preceding one, that is known as AP arithmetic progression. Now we will consider here, we will suppose A1, A2, A3, so on, AN. We will suppose B an AP. Let this sequence be an AP. Then in this AP, we will notify A as the first term, A1 as the first term, also denoted by, इसको हम फर्दर डिनोट करते हैं किससे, ए से. तो A1 हम डिनोट करते हैं एज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, जिसको हम फर्दर डिनोट करते हैं किससे, ए से. और A2 जो है, A2 इट इज सेकेंड टर्म ऑफ द एपी, सेकेंड टर्म. बट मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो दूसरी टर्म होती है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ कांस्टेंट नंबर टू द फर्स्ट टर्म. व्हाट इज फर्स्ट टर्म हियर, A1. And how we will obtain A2? If we add D to A1. What is D? D is the constant number. So therefore we can write it as A1 plus D, or it means that A1 को आपने denote किया है A से, so we can write it as A plus D. So second term can be written as A plus D. It may be further written as A plus D की जगह हम लिख सकते हैं 2 minus 1 into D. What is 2? 2 is the subscripted number which indicates the position of the term. So यहाँ पर जो है A2, this is second term. So यहाँ पर आपने लिखा A2 as A plus 2 minus 1 into D. 2 minus 1 into D. तो इसी तरीके से अगर आप A3 निकालेंगे, that will be equal to A2 plus D. यानी A2 जो है ना, this is third term, ठीक है. A3 is third term, A2 is second term. So A3 will be equal to, A3 किसके बराबर होगी, अगर आप A2 को एक कांस्टेंट नंबर यानी कि D आप ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे A2 plus D मिलेगा. So A2 आपने फर्दर लिखा है किसके बराबर, वो आपने लिखा है A plus D, A plus D. So you can write A plus D plus D. So it is equal to A plus 2D. ठीक है. तो it will be also written as A3 is equal to A plus, what is subscripted number here, 3. So we can write here 3 minus 1 into D. 3 minus 1 is 2D. So A3 can be written as A plus 3 minus 1 into D, and A2 can be written as A2. This can be written as A plus 2 minus 1 into D. So where this 2, this is the subscripted number which indicates the position of the term. Here 3, it also indicates the position of the term. So similarly, continuing in this pattern, you may find AN, that is nth term of the AP. So you can continue this pattern as AN is equal to A plus, what is here, this is 3. 3 is the position of the term. What is the position of term, that is n. So we can write here n minus 1 into D. So an is equal to A plus n minus 1 into D. Here this A, what is it, this is first term. What is n, this is number of terms, and what is D, this is common difference. So here in this expression, this is an is equal to A plus n minus 1 into D. It involves four numbers, an, A, n and D. And अगर आपको इस एक्सप्रेशन में कोई भी 3 नंबर पता होंगे तो चौथा नंबर आप आराम के साथ निकाल सकते हैं, वेदर आपको a निकालना हो या आपको a निकालना हो या n या d. So this is an, this is the formula for finding the nth term of an AP. Now we will take an example. आपको एग्जाम्पल इस तरीके से है, how many 2-digit numbers are
डिविजिबल बाय 3। तो कितने 2 डिजिट नंबर जो हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, ये तो आपको निकालना है, मतलब कितने हैं। तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आप देखेंगे फिलहाल लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। तो 3 से कौन कौन से 2 डिजिट नंबर्स डिवाइड होते हैं वो तो आपको पता है। तो यूं तो आपको पता है 2 डिजिट नंबर्स 10 से स्टार्ट होते हैं, तो इसके बाद आता है 11, इसके बाद आता है 12। तो इनमें से कौन सा 2 डिजिट नंबर 3 से डिवाइड होता है, दैट इज 12। सो वी विल राइट हियर 12। इसके बाद कौन सा आएगा, 15। जाहिर सी बात है, इसको 12 को 3 ऐड करेंगे, 12 plus 3 will be equal to 15, 15 plus 3 that is equal to 18, 18 plus 3 that is 21, so on continuing in this pattern. So इसी तरीके से आपको पता है 100 जो है that is 3 digit number 100, this is 3 digit number। 100 से छोटा है 99, 99 is the 2 digit number, so it is exactly divided by 3, so we can write here 99। So this is the list of 2 digit numbers which is exactly divisible by 3। now अब आपको बताना है कि ये कितने हैं, इनकी तादाद कितनी है। तो यहां पर आपको पहली टर्म पता है a that is equal to 12, d कॉमन डिफरेंस वो क्या आएगा आपका 15, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 12, 15 माइनस 12 इज 3। और यहां पर आपको साथ ही साथ ए एन लास्ट वाली टर्म जो है दैट इज A99। तो यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि ए एन जो है दिस इज द एनर टर्म ऑफ द एपी, दिस इज ऑल्सो नोन एज जनरल टर्म ऑफ द एपी, जनरल टर्म ऑफ द एपी। और इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं, याद ये भी बता सकते हैं आप, लास्ट टर्म ऑफ एपी इट इज डिनोटेड बाय एल, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय एल, स्मॉल एल, ठीक है। तो ये होती है एनाटोम ऑफ द एपी। तो यहां पर ए एन जो है ना लास्ट टर्म वो किसके बराबर है, 99। तो जाहिर सी बात है यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर आपको क्या क्या वैल्यू दिए हुए हैं, ए एन की जगह कितना है 99 इक्वल टू ए दैट इज 12 प्लस एन का वैल्यू आपको निकालना है -1 इंटू डी, डी की जगह 3 है, ठीक। अच्छा, तो यहां पर आप क्या करेंगे, आप देखिए 99 माइनस 12 आएगा, 99 माइनस 12 इट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स n माइनस 1। सो 99 माइनस 12 कितना हुआ, दैट इज 87 इक्वल टू 3 टाइम्स n माइनस 1। सो n माइनस 1 का वैल्यू आपको आएगा 87 डिवाइडेड बाई 3। सो n माइनस 1 विल बी इक्वल टू वो कितना बनेगा आपको 29, n is equal to 29 plus 1 that is equal to 30। सो n का वैल्यू आपका मिलता है यहाँ पे 30। इसका मतलब कितने 2 डिजिट नंबर्स हैं जो कि डिवाइड होते हैं, कम एग्जैक्टली किससे डिवाइड होते हैं, 3 से। सो देयर आर 33 2 डिजिट नंबर्स राइट फ्रॉम 10 टू 100 जो कि एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं 3 से। सो ये सब पॉसिबल किससे होता है, जब आप मतलब एनाटोम ऑफ एपी जो हैं वो आप मतलब अच्छे तरीके से उसके बारे में जानते होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपको एपी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप जाहिर सी बात है आप बड़े से बड़े क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनाटोम ऑफ द एपी। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।